Welcome back, class 11th. We have discussed sources of business finance, meaning and importance in our previous video. Today, this is the second part, and we ended with this question in our previous video that state two factors that affect the fixed capital requirements of a company. Fixed capital, which is used to buy fixed assets like land, building, furniture, plant, machinery. Uh, for that purpose, fixed capital requirements are there. So now, which factors affect fixed capital requirements? So let us have a look. Requirements of fixed capital depends upon various factors. फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. सबसे पहले बिजनेस का नेचर क्या है. अगर बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली उसको फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी. एक कंपनी जो केवल ट्रेडिंग में लगी हुई है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय करती है और उसको सेल करती है. ओके, बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको उसको बहुत सारी मशीनरीज परचेज करनी होती हैं. ओके, सो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. उसको प्लांट भी एस्टेब्लिश करना होता है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है बजाय उसके जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है. ओके, then second factor which affects the fixed capital requirement, that is scale of operation. Companies which are operating at large scale require more fixed capital as they need more machineries and other assets, whereas small scale enterprises need less amount of fixed capital because small scale पे सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो ऑपरेशंस हैं वो कम होंगे, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी. ओके, many other topics are there, and these factors we will discuss in class 12th in detail. Okay, here only two factors you keep in mind: nature of business and scale of operation. Okay, now let us discuss sources of business finance on the basis of ownership, जो ये हमने चैप्टर की बिगनिंग में देखा था, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ओनर्स फंड. ओके, ओनर्स फंड में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर. ओके, देन रिटेन अर्निंग्स, और फिर आता है GTR, ADR एंड ITR. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इनकी मेरिट्स, इनके मीनिंग, इनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स. ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे. So for a company, methods of raising funds, okay, or raising finance, a company which requires more funds, okay, it can arrange funds through issue of shares. So the capital obtained by issue of shares is known as share capital. Okay, company capital collect करने के लिए कुछ जो अपनी जो capital है वो छोटे छोटे amount में divide करती है और उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. और उसे परचेज करने के लिए जो कॉमन पीपल है वहाँ उसमें प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, प्रॉस्पेक्टस विच इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, ओके, फॉर परचेजिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो शेयर कैपिटल कंपनी इस तरह से अरेंज करती है. इन द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल. The capital of a company is divided into small units called shares. If a company issued 10,000 shares of rupees 10 each, then the share capital of a company is rupees 1 lakh. The person holding the share is known as shareholder. There are two types of shares: equity shares and preference shares. And these shares you study in your accountancy also. Okay. So first of all, we'll discuss equity share. Now शेयर्स में भी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है. एंड दीज रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी. ओके, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो ओनर्स, रियल ओनर्स नहीं होते हैं. ओके, हम डिस्कस करेंगे क्यों. ओके, बाद में डिस्कस करेंगे. दे हैव राइट टू वोट. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको राइट टू वोट होता है and right to participate in the management because it is a source of permanent capital. Okay, for it is a source of finance for long term and no charge on assets because
company does not need to mortgage its assets, whereas if a company issues any other debenture, suppose डिबेंचर इशू करती है कंपनी, तो कंपनी को अपनी कोई भी एसेट जो है मॉर्गेज रखनी होती है. एंड बिसाइड्स दिस, इफ अ कंपनी टेक्स लोन or advances from banks, then also company has to mortgage its assets. But for issuing the equity share capital, there is no need to mortgage any asset, so it does not create any charge on asset. Then higher returns, equity shareholders get higher returns in the years of high profit. जब कंपनी को हाई प्रॉफिट होता है तो जो बाकी जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं या फिर जैसे लोन लिया है तो उस पर कंपनी को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है. ओके, देन क्रेडिटर्स को पे करना होता है. उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टर्न आता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे करना होता है. बट फाइनली जो भी प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग जो होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो इक्विटी शेयर होल्डर गेट हायर रिटर्न्स इन द ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, इन द हाई प्रॉफिट एंड देन कंट्रोल. Equity shareholders have right to vote and right to participate in the management, but preference shareholders को ऐसा कोई right नहीं होता है. Okay, so that is why they are considered as real owners, and equity shareholders does not create any burden on company because payment of equity dividend, ठीक है, is not compulsory. देखिए जो डिबेंचर्स होते हैं उन पे तो क्या पे होता है, इंटरेस्ट. बट जो भी शेयर्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, उस पर कंपनी जो पे करती है वो इंटरेस्ट पे नहीं करती, वो डिविडेंड पे करती है. ठीक है, और उसमें भी अगर इक्विटी शेयर है तो उस पर डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता है. इसीलिए इनको हाईली रिस्की कैपिटल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, it is the most risky capital because dividend is not guaranteed. Okay, अब इसकी रिस्क है जो लिमिटेशंस हैं, तो सबसे बड़ी इसकी रिस्क है दैट पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज़ नॉट कंपलसरी. भैया जब आप मनी कहीं पे इन्वेस्ट करते हो और आपको कुछ भी नहीं मिलता 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो ये सबसे बड़ी रिस्क है. ओके, इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन इवन बैंक, देन ऑल्सो बैंक्स गिव यू small interest. But if you invest in any equity shares and if suppose you do not get any dividend, then it is the most risky capital. Then cost is higher because company has to spend lot of money on issue of equity shares. Okay, then delay issue of equity shares is time consuming. इनको इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. ओके, और बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है. ओके, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज issue depends on share market conditions, like because equity shareholders are the primary risk bearer, therefore demand of the equity share is more in the boom time. बट अगर रिसेशन टाइम होता है, सपोज जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम पे अभी बूम टाइम नहीं है, अभी रिसेशन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की डिमांड नहीं होगी. अगर डिमांड नहीं है तो कंपनीज के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि कैपिटल किस तरह से वो रेज़ करें, है ना. तो कैपिटल रेज़ करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. ओके, सपोज if you are going to start a new business and you want capital, if your goodwill is good in front of others, then it won't be a difficult task for you to arrange capital. But if you are new to others and people get feared to give you money, then it is very difficult to arrange capital for you. In the same way, it is difficult for companies too, and especially in the recession time. If boom time, then people would demand equity shares of any company. But if recession, then people will not demand equity shares even of a well known company. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है.
और ये मार्केट कंडीशंस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. Preference, as the name suggests, that preference shareholders get the preference in comparison of equity shares. ठीक है, जब कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो सबसे लास्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगी. एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, और एक जब कंपनी जब वाइंड अप होगा उस टाइम पे मनी रिटर्न करने में. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रेफरेंस इन दीज टू सेंस. So, and it is considered safer investment as compared to equity shares, and they receive dividend at a fixed rate, and these shareholders are like creditors. They have no voting rights. Okay, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है. बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कंपनी अकाउंट्स में. सपोज इफ़ अ कंपनी इज़ अनेबल टू गिव डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर 2 years, 2 consecutive years. ठीक है, 2 साल तक कंटिन्यूस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया है, देन इन 3rd year दे विल गेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट वोटिंग राइट्स. वैसे उनको वोटिंग राइट नहीं होता है. ठीक है, अब ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लाइक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. अब ये जो नेम के अकॉर्डिंग है, क्यूमुलेटिव जो है ये सबसे सेफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बिकॉज इफ़ अ कंपनी रिमेन्स अनेबल टू पे द डिविडेंड, ठीक है, तो इनका जो डिविडेंड है वो उस साल लैप्स नहीं होगा और वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्यूमुलेट हो जाएगा. जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, ठीक है, तो उस तरह से ये नेक्स्ट ईयर के उसमें डिविडेंड में ये अक्यूमुलेट हो जाता है और कंपनी को इसे देना ही होता है. ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स इफ़ अ कंपनी रिमेन्स अनेबल टू पे डिविडेंड इन एनी ईयर, देन कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर का चुकाएगी, नेक्स्ट ईयर में इस ईयर का, पिछले साल का जो डिविडेंड है वो कंपनी नहीं पे करेगी. देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एज द नेम सजेस्ट दैट जो अगर कंपनी को जो प्रॉफिट है वो सारी जो पार्टीज़ हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पे कर दिया इंटरेस्ट, देन क्रेडिटर्स को कर दिया, ओके, उसके बाद में बैंक्स को कर दिया, या जो भी लोन का था वो कर दिया, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कर दिया. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे कर दिया, इक्विटी डिविडेंड भी पे कर दिया. अब कंपनी के पास और भी प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट यहाँ पे अगर बचता है तो फिर क्या होगा, जो उस बचे हुए प्रॉफिट में से, वैसे तो सारा का सारा राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, बट जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें उस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स वालों को बचे हुए प्रॉफिट में भी जो है डिविडेंड मिलता है. तो ये है मीन्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. देन नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स उनको जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसमें से कोई भी डिविडेंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता. देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स विच गेट्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. ठीक है, वो तो कन्वर्टिबल है. और नॉन कन्वर्टिबल मतलब उनका वाइंड अप के टाइम पे भी जो है वो शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते किसी और फॉर्म में, वो प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं. और मीन्स वो नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, मीन्स वो किसी भी तरह के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहते हैं. देन लेट अस डिस्कस अबाउट मेरिट्स. अब ये जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में ये सेफ होते हैं. दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल. ओके, ये दोनों बातें मैंने बता दी आपको कि 2 इनको प्रेफरेंस होते हैं, एक तो डिविडेंड लेने का
ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड रिसीव करते हैं और वाइंड अप के टाइम पे भी कैपिटल इनको पहले इनको मिलती है. देन नो चार्ज ऑन एसेट. प्रेफरेंस शेयर के इशू पर भी कंपनी को कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं रखनी होती है. तो ये एक कॉमन जो पॉइंट है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में. देन कंट्रोल. अब it does not affect the control of equity shareholders because they do not have any voting rights. Okay, but in certain cases, if a company remains unpaid to pay unable to pay dividend for 2 consecutive years, then preference shareholders will get right in third year. Okay, voting right in third year. Then next point is that they get dividend with a fixed rate. ठीक है, उनको फिक्स रेट से मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है. उनको तो प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. बट प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है. So they are useful for those investors who want fixed rate of return. Now let us discuss some limitations of preference shares. First of all, it is a costly source of fund. फंड अरेंज करने के लिए ये एक कॉस्टली सोर्स है कंपैरेटिवली डिबेंचर्स के. ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है. ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिबेंचर्स से तो थोड़ी सी रिस्की है ही है. ओके, प्रेफरेंस कैपिटल, तो इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, रेट ऑफ डिविडेंड भी ज़्यादा होगा. ओके, तो ये जो है ये एक डिबेंचर्स के कंपैरिजन में ये एक कॉस्टली सोर्स है फंड्स का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नो टैक्स सेविंग. प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स, बट डिबेंचर इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल. ओके, फॉर इनकम टैक्स. डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो तो डिडक्टेबल होता है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जब करने के लिए. ठीक है, बिकॉज जो सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट ही कंपनी पे करती है प्रॉफिट में से, और उसके बाद में टैक्स पे करती है. यानी कि टैक्स से भी पहले कोई कंपनी टैक्स दे या ना दे, लेकिन उसको डिबेंचर इंटरेस्ट का देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसीलिए जो डिबेंचर कैपिटल जो मानी जाती है वो सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है. ओके, बट डिबेंचर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई भी टैक्स की सेविंग नहीं होती, बिकॉज इट इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट और इनकम टैक्स, सो देयर इज़ नो टैक्स सेविंग. द नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रिस्क टेकर्स. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न. अब जो हायर रिटर्न चाहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी होगी, तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है. फिर जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए इक्विटी शेयर्स ही ज़्यादा सूटेबल हैं. देन लेट अस डिस्कस सम डिफरेंसेस ऑल्सो. नाउ डिफरेंसेस हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो फर्स्ट यहाँ पे है डिविडेंड. तो इक्विटी शेयर्स में जो डिविडेंड मिलता है वो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट द प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स. ये इक्विटी शेयर है, इट इज़ नॉट इंक्वायरी शेयर. देन वोटिंग राइट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल वोटिंग राइट्स हैं, बट जबकि यहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स नहीं है. एंड हियर यू कैन मेंशन दे ओनली गेट वोटिंग राइट आफ्टर 2 years ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. देन रिस्क, जो रिस्क है वो ज़्यादा होती है इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में कम होती है. देन रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे ये फ्लक्चुएट होती है विथ प्रॉफिट हो गया बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगी इक्विटी शेयर्स पे. प्रॉफिट बहुत कम है तो नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगी. और प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर्स पे. बट यहाँ पे जो रिटर्न है, मतलब जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे, वो फिक्स रहेगा कि एक पर्टिकुलर 10% या जो भी, अगर 10% प्रेफरेंस शेयर है या 8% प्रेफरेंस शेयर है तो उन पे उस रेट से डिविडेंड दिया ही जाएगा. देन कंट्रोल. सो
Equity shareholders get control on management, but preference shareholders, they do not get. Now, we end our discussion with this question. You please read this question carefully, and we will discuss this question in our next video. Till then, goodbye. If you have any doubt, you can tell me through your comments. Okay? God bless you.